ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਇਹ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? तो ये है ना, ये पिंड का हिसाब होता है ये। अच्छा, हाँ, हर पिंड का हिसाब होता है। पिंड का हिसाब होता है ये। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे होते हैं? यहाँ पे बड़े बड़ी दूर से आते हैं ये। अच्छा, हिमाचल से, कश्मीर से, जम्मू से, हरियाणा से, अच्छा। हर जगह से आते हैं, हर स्टेट से ये। ज़्यादा उत्तर भारत के लोग होते हैं? सब ये हर स्टेट का आदमी आता है ये। अच्छा, बहुत अच्छे। हाँ, ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਾਟ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬੜੇ ਤੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਲਓ ਜੀ, ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਭ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ ਜਵਾਲਾ ਦਾਸ ਕੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਘਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾर्ड है 500 साल तक का रिकॉर्ड मिल जाता है। 500 साल ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 450-500 साल तक का रिकॉर्ड मिल जाता है। यह आपके बुजुर्गों की नींव रखी हुई होती है, जो आगे को उसको चलाते रहते हैं। आपको और हमारा परस्पर प्यार उसमें रहता है। कभी भी जनरेशन के बारे में, किसी के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो यहाँ से सारी मिल जाती है। तो जैसे कभी भी आपके दादाजी आए हुए, पिताजी आए हुए, आपकी फैमिली ट्री के बारे में कभी भी कोई जानकारी लेना चाहें, वो सारी यहाँ से प्राप्त हो जाती है। पंडित जी, सिर्फ जो अब गांव है उसी से पता चलता है या पुराने गांव भी पता जाते हैं कहाँ कहाँ के? गांव चाहे कोई भी बदले, लेकिन चलेगा जड़ से ही, पुराने गांव से ही चलेगा।
पुराने गांव से चले। पुराने गांव से चले। पहले यहाँ पर 2500 प्रोत थे, 2500 घर, 2500 के अब सीमित उतने 2500 ही घर हैं। अच्छा, तो ये जो आपकी बही खाते हैं ये किस तरह से आगे चलते हैं? आपके कितने भाई हैं इस समय? हम 2 भाई हैं। हमारा जो पीढ़ी से, हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी यह कार्य चलता रहता है। अच्छा, तो फिर आप दोनों भाई इसी गद्दी पे बैठते हैं? इसी गद्दी पे ही बैठते हैं। अगर आपके आगे जो बच्चे होंगे, अगर वो इस सेवा में आना चाहेंगे जो आपकी वही खाते हैं, उनको फिर आगे वितरण कर देते हैं उनमें? वितरण, हाँ, जैसे अगर से 2 भाई हैं तो 2 भाइयों में वितरण होगा। अच्छा, वही खाते हैं, उसके हिसाब में गांव आपस में बंट जाते हैं हमारे। अच्छा, आपके पास कितने गांव होंगे? हमारे पास में गांव का कोई आलंकन नहीं कर सकते। अच्छा, कम से बहुत गांव हैं। फिर आप किस तरह से ये जलंधर जिला भी है, लुधियाना जिला भी है, अच्छा, पटियाला जिला भी है। अच्छा, उसमें कुछ गांव हर किसी के पास में बटे हुए होते हैं। अच्छा, आप गांव के हिसाब से काम करते हैं? किस तरह से करते हैं? गांव के हिसाब में, जिसके यहाँ जो गांव होगा गांव के हिसाब में। अच्छा, कहीं पर गांव के हिसाब में भी प्रो होते हैं और कहीं पर कास्ट के हिसाब में भी प्रो होते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चलता है कि पूरे 2500 लोग हैं? कैसे पता चल जाता है कि कौन से गांव का किसके पास है, कौन सी जाति किसके पास है? देखो, जो ही धर्म से जो भी वो आस्था रखता है, हाँ, तो उसमें जो कार्य है, कार्य क्षेत्र में जो है कि हर किसी का पता रखना अनिवार्य होता है कि भाई हाँ, कौन सा गांव किसके पास में है, कौन सा गोत्र किसके पास में है, तो उसी के यहाँ उसको मिलवा देते हैं। अच्छा, सभी गोत्र आपके याद होते हैं? सारे गोत्र होते हैं। अच्छा, आप कितना पढ़े हुए हैं? मैंने संस्कृत से MA करा। आपने संस्कृत से MA किया हुआ है। किस तरह से लेते हैं आप इसको, काम को? ये हमारी पौराणिक वो है जी, और हम तो जो जजमान होते हैं, जजमानों की सेवा के लिए यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। जो जजमान राजी खुशी में भी आते हैं या चाहे किसी कार्य से भी आए, उन सब का कार्य हमें संपूर्ण कराना होता है। और सबको हमारी यही हो रहती है, अपने जीवनों से हमारे जीवन खूब बढ़ें, सामर्थ्यवान हों। इसमें हम कारोबार या धंधा इसको नहीं ले सकते। यह पौराणिक है और आप लोगों की आस्था या आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। यह आपके बुजुर्गों और हमारे बुजुर्गों का जब से यहाँ पर जब से गंगा जी का हुआ है, जब से आपके बुजुर्ग और हमारे बुजुर्गों की आपस की सहमति और आपस का प्यार बना हुआ। आपने एक बात कही थी उस समय बात करते करते कि धंधा वो होता है, कारोबार वो होता है जहाँ पैसे का सवाल रखा जाए। पैसे का सवाल रखा जाए, और साथ में ये भी रहता है उसमें कि पैसे के सवाल रखने के साथ में उसकी आमदनी से हम वो करें जी नहीं पंडित जी, हमने आपका इतना तय कर रखा है, महीने का या साल का, उसको धंधा कह सकते हैं। हाँ। या तो आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है, जैसा जजमान की जैसी होती है उस ढंग से उसको वो करते हैं। अक्सर लोगों में ये प्रभाव रहता है, बनाया गया है कि ये पंडे हैं जी वहाँ के, ये कह देते हैं कि वो तो कपड़े उतार लेंगे। आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं इसमें ऐसे कोई जो बही खाते पे जो भी होते हैं पुरोहित लोग, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होता। अकेले बही खाते वालों की, दूसरों की सभी की कर रहा हूं। दूसरे जो घाट पे जो अन्य लोग फिरते हैं, अन्यत्र जो घाट पे बाहरी लोग जो आए हुए हैं यहाँ पे, जो घाट पे वो कार्य करते हैं कि बाहरी मिल गए और वहाँ पर कह दिया हम तो यहाँ के पुरोहित हैं, तो वो जो है कि लूट खसोट का काम वो लोग करते हैं। पुरोहित का तो कोई वो नहीं होता। अच्छा, पुरोहित नहीं है वो अलग लोग होते हैं? वो अलग होते हैं वो पुरोहित, क्योंकि आम लोगों को नहीं मालूम कि वो अलग लोग होते हैं या नहीं है। वो घाट के अन्यत्र बाहर के लोग आए हुए होते हैं। अच्छा, आपका पीढ़ी दर पीढ़ी काम है? हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी। वो अलग लोग होते हैं? वो अलग लोग। जो पुरोहित होते हैं वो गद्दी पे बैठे होते हैं, हम जैसे गद्दी पे हैं यहाँ पर स्थान पे बैठे हुए होते हैं। और जो ये लोग होते हैं अन्यत्र जो घाट पर होते हैं, जो ये करते हैं इस तरह का कार्य, उन लोगों से ये भावना जाती है। अच्छा, सबसे दिलचस्प बात क्या बतानी चाहेंगे इससे जुड़ी हुई? इससे जुड़ी हुई बात है कि इसमें आपका और हमारा पौराणिक रिश्ता है। पीढ़ी दर पीढ़ी से कम आपकी जो है कि 12-13 पीढ़ी का रिकॉर्ड यहाँ पर अंकित है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी से यह सबूत है कि आपके और हमारे संबंध जो है इतने टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। जब से गंगा जी आई, तो जब से आपका और हमारा संबंध यह था कि भाई हाँ, ये हमारे पुरोहित हैं और यह हमारे जजमान। आपके बुजुर्गों की राखी में कि भाई हाँ, हम यहाँ पर कभी भी हरिद्वार में आएंगे तो आपका जो है कि हम प्लस वो रखेंगे, आप हमारा ध्यान रखा। उस टाइम पर ना तो ठहरने की व्यवस्था होती थी,
ना इतने संपन्नता थी। तो उस टाइम पे भी जब यजमान आते थे तो अपने पास ही हम ही लोग उनको ठहराते थे। सारी व्यवस्थाएं सब यहीं से ही होती थी उस समय। अच्छा, उस समय आप पूरा रहने का खाने का प्रबंध भी करते थे उनका? आज भी यही व्यवस्था है। अच्छा, आज भी करते हैं? आज भी करते हैं। अगर से कोई यजमान आता है, कोई रुकना चाहे तो रुकने वगैरह की सारी व्यवस्था निःशुल्क करी जाती है। वो किस तरह से व्यवस्था करते हैं आप? अपने पास हमने वो यजमानों के लिए बनाए हुए होते हैं। अच्छा, हम कमरे वगैरह बना कर रखे होते हैं? हाँ, यजमानों के लिए हम कमरा वगैरह वो बना के वो सारी वो व्यवस्था उनकी कर देते हैं। अच्छा, और भी कुछ इससे जुड़ी हुई बातें बताएं आप कैमरे के सामने आज, क्योंकि लोगों को पता चले कि क्या क्या किस किस तरह से काम होता ही है। बस बाकी इसका बस ये पीढ़ी से ही संबंधित है, अपने कुल से उससे संबंधित है। क्योंकि जिसमें जो ये पीढ़ी का जो कार्य है यह और रिकॉर्ड कहीं नहीं मिल सकता, सिर्फ यहाँ पर हरिद्वार से अलावा। क्या इस रिकॉर्ड को सरकारी तौर पर मान्यता मिलती है? इसको हाँ, यह कोर्ट वैलिड है। आप जाते हैं कभी किसी मामले में इस तरह? कभी किसी का ऐसा उलझ जाता है तो जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। तो इसको ऑथेंटिक माना जाता है? नेचुरली ऑथेंटिक तो है ही ये, कि कौन कौन आया, कब आया, किस तरह से आया, ये मान्य है, उससे कोर्ट से मान्य है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप अपने बच्चों को भी इसी लाइन में डालना चाहेंगे? हाँ, बच्चे तो इस लाइन में आएंगे ही आएंगे। जो पौराणिक कार्य है इसको तो छोड़ नहीं सकते। नहीं, कुछ अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कुछ इंजीनियर बनना चाहता है, वो कार्य भी करेंगे लेकिन इधर भी देखेंगे। अच्छा, देखेंगे साथ में? देखेंगे साथ। आपने पहले ही उनको मानसिक तौर पर तैयार कर रखा होता है? ये भी कार्य देखेंगे, सारे कार्य करेंगे। उसमें जो है कि जो कोई डॉक्टरी लेता है, कोई इंजीनियर, कोई इस तरह की कोई भी पोस्ट अगर से कोई लेना चाहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो है कि साथ में ये भी कार्य के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय हमें दिया।